Assalamu alaikum, dear students of class 11th. I am Manzoor Ahmed Dar, lecturer Boys at Secondary School Langate. As you know, we were doing the Ailing Planet from our textbook Hornbill, but there was a break due to some COVID duty, and now we are again resuming the classwork, and we are resuming our virtual classwork, and we were doing the exercise given at the end of the chapter, the ailing planet. Let us do the question on page number 48 of the book Hornbill. Thinking about the language. The phrase inter alia, meaning among other things, is one of many Latin expressions commonly used in English. Dear students, you know, inter alia word has been used on page number 44, paragraph number 1, 2, 3, 4, 5, 6 of your book. The sentence reads: one of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission. Here it means that the International Commission was doing so many things, and among those things, it was also working on the question of ecology and environment. So, inter alia means among other things. But the word inter alia is a Latin expression, and we borrow words sometimes from other languages, and there are some Latin expressions we use mostly in our day to day speech. So, one of those which you may have come across the word is prima facie. Prima facie is mostly used in courts, it is used by lawyers, it is used in the police stations, and it is used in so many situations of our day to day life. Prima facie means at first sight. If we wish that we should know it in Urdu, it is Badiul Nazar mein. Badiul Nazar mein. Pehli nazar mein, at first sight. We will try to make a use of it. Prima facie, he would appear to be guilty. सरसरी नज़र में पहली नज़र में वो मुजरिम दिखेगा. और दूसरा जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं which you are also familiar with is ad hoc. Dear students, ad hoc is a Latin word and it means for the specific purpose, for a specific case or situation at hand and for no other purpose. जिसका कोई दूसरा काम नहीं होता है, आर्जी तौर जो हम किसी मखसूस काम के लिए किसी को जो है कोई काम, कोई कमेटी तश्कील देते हैं, कोई अपॉइंटमेंट करते हैं किसी मखसूस काम के लिए, सिर्फ उसको हम एड हॉक बोलते हैं. तो इसका यूज़ किया है मैंने. द प्रिंसिपल वुड हायर अ लेक्चरर एजुकेशन ऑन एड हॉक बेस, यानी महज उसका काम एजुकेशन पढ़ाना होगा और वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए. इन्फिनिटम एक और वर्ड है, इन्फिनिटम. इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एड इन्फिनिटम बोलते हैं. द स्टेट बीइंग इन्फिनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इन्फिनिटी और क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्फिनिटी, हैविंग नो एंड. कोई ऐसी चीज़ जिसका अंत ना ही दिखे. which seems endless, which we see
as if it has no end. So इसका मैंने यूज़ किया है. The point about the outbreak of pandemic has been made an infinitum on the social media debate. सोशल मीडिया पे जो आजकल पेंडेमिक चल रहा है उस पर जो बहस चल रही है उसके आउटब्रेक पर, दैट इज़ इन एड इन्फिनिटम, यानी वो लंबा होता ही जा रहा है. इट सीम्स दैट इट विल नेवर कम टू एन एंड. एक और वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी लैटिन है. इट मीन्स इन कैमरा. इट इज़ इन कैमरा और इन सीक्रेट. देखो यहाँ पे इन कैमरा है, इट इज़ नॉट हाइफिनेटेड, बट सम स्कॉलर्स राइट इट in a hyphenated type. They put a hyphen between in and camera. It means in secret, in a room. So इसके यूज़ मैंने किए हैं. The issue was discussed with Chief Minister in camera. Secretly कोई मामला चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया. लेट इट बी द प्राइम मिनिस्टर, लेट इट बी द होम मिनिस्टर, जिसने इन कैमरा कोई बात चीफ मिनिस्टर के साथ की. और एक वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ म्यूटेटस म्यूटेंट्स. तो कोई चीज़ होता है, कोई काम होता है, कोई पेपर होता है, कोई कानून होता है, कोई ऑर्डर होता है, या कोई प्रोसेस होती है. तो एक इस प्रोसेस को दूसरी जगह जब हम अप्लाई करते हैं तो हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें. तो वही चेंजेस जो नेसेसरी है, जो वहाँ पे माहौल के मुताबिक वहाँ के एटमॉस्फेयर को फिट करने के लिए, जहाँ हमने इस प्रोसेस को दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको बोलते हैं म्यूटेटस म्यूटेंट्स. तो ये है changing only those things which need to be changed, only the necessary changes have been made. ये जहाँ पे होगा तो वहाँ पे म्यूटेटस म्यूटेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं. अब मैंने लिखा व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स इज़ equally true of mutatus mutants in private schools. कुछ नेसेसरी चेंज जो है प्राइवेट स्कूल्स में करते हैं, जो नेसेसरी है वहाँ पे, तो अदरवाइज टीचिंग का प्रोसेस सेम है. सपोज़ वहाँ पे उनके लिए नेसेसरी है, वो सैलरी अपने हिसाब से देंगे, वो रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से कर लेंगे, तो वो उनके लिए नेसेसरी. अदरवाइज द टीचिंग इज सेम. दूसरा मैंने इसका यूज़ किया है, द आर्ग्यूमेंट कैन बी फॉलोड म्यूटेटस म्यूटेंट्स. क्योंकि कोई एडवाइस, कोई एडमोनिशिंग, कोई आर्ग्यूमेंट हम उसी तरह फॉलो कर लेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चेंज है वो उसमें हम कर लेंगे. तो इसी तरह से एक और वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कैविएट. कैविट हम अक्सर बोलते हैं. कैविट मीन्स अ वार्निंग, अ कॉशन. तो अक्सर जो है, suppose somebody has some apprehension that he may be his actions may be challenged by the law, and he asserts that he is right, so he goes to the court, approaches the court for a caveat, that a warning be issued to my opponents that I am right. तो इस तरह से कैवेट के माने वार्निंग है, और इसीलिए मैंने इसका यूज़ इस तरह किया है. She put a caveat on the line to prevent encroachment. She put a caveat on the line to prevent encroachment. किसी मुदाखलत से बचने के लिए उसने caveat कोर्ट में डाल दी, या वार्निंग जो है इशू कराई. तो ये चीज़ें हैं. एक है टेबुला रासा. टेबुला रासा मीन्स ब्लैंक स्टेट, क्लीन स्टेट, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और नॉलेज. जो अब बच्चे हमारे पास आते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होती है, स्पेशली दोज फ्राम द फर्स्ट, दोज हु आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स ऑफ ए फैमिली.
जो बच्चे उन घरों से आते हैं बच जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हम कहेंगे द माइंड ऑफ न्यू जॉइनिंग स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ मोस्टली टेबुला रासा। तो ये थे चंद अल्फाज जो हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, और अपने अब यहाँ आप देख लेंगे हम अपनी लैंग्वेज में भी इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेसन जो है इतना ही है, बट दिस इज़ वेरी, ये बहुत बिल्कुल शॉर्ट है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स because they will help you to become good speakers of English. Thank you, guys. Thank you very much.